سے بھیجا اور میرا جو کمپنی افسر تھا اس نے مجھے ایک تعارفی رکا دیا جو جنرل ضیاء الحق صاحب کا ایک پی اے تھا بڑا خاص، اس کے نام پہ اگر ضرورت پڑی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو وہ آپ کی مدد کر سکیں گے۔ اچھا، چنانچہ میں گھر آیا تو دیکھیں وہ میرے چچا جو تھے وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، ابو کے چچا زاد بھائی تھے، بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میری پھوپھی ان کی بیوی بھی تھی، میری پھوپھی فوت ہو گئی تھی اور جو ان کا ایک بیٹا تھا بشارت احمد وہ بہت چھوٹا تھا جی، تو ان کی دوسری شادی تھی، اس سے بھی ان کی 2 بچیاں تھیں تو ان کا یہ واقعہ ہو گیا۔ واقعہ کی الگ تفصیل ہے لیکن واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ بیٹوں کی جو رسید ہوتی ہے اشتمال میں وہ رقبہ ہمیں مل گیا تھا، پہلے کسی اور کا تھا تو انہوں نے زبردستی اس پر قبضہ کرنے کے لیے آئے اور یہ تھا تو کیا آواز ٹھیک کر لیں، اپنی آواز ٹھیک کر لیں پلیز۔ جی، تو مخالفین نے ان کو ڈنڈوں اور کلاڑیوں سے شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ میرے دوسرے چچا بھی غلام احمد صاحب وہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا تو میں اس واقعے کے 10 دن بعد وہاں اپنے گاؤں میں پہنچا تو میں فوج سے فارغ ہو کے گیا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ یہ میرے ایک روکا ملا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں جا کے کوئی سپورٹ کی درخواست بھی کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے کیس کی تفتیشیں جاری تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو پولیس کی حالت ہے، رشوت یہ وہ اس طرح کے چکر چلتے ہیں تو میرے والد صاحب نے یہ سمجھتے ہوئے کہ بچہ ہے، اس وقت 22-23 سال میری عمر تھی، یہ بچہ ہے چلو کہنے لگے جائیں جا کے شوق پورا کر لے۔ میں بہرحال وہاں گیا تو مجھے گیٹ پر جب میں نے جا کے رکا وہ دکھایا تو مجھے بڑی پروٹوکول کے ساتھ ان کے پاس، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کرنل صاحب کے پاس مجھے پہنچا دیا گیا تو کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا کیا پرابلم ہے، میں نے وہ بتایا تو کہنے لگے یہ لکھ لیں، آپ کو جنرل صاحب سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ چنانچہ مجھے جناب تھوڑی دیر بعد جنرل صاحب کے پاس 2 بندے چیک کرنے کے لیے آئے اور پھر مجھے جنرل صاحب کے سامنے لے گئے۔ جنرل صاحب جی وہ پوری جو جلال کے ساتھ اپنے دفتر میں دونوں طرف فلیگ تھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کرنل صاحب جنہوں نے مجھے بلانا تھا وہ بھی ایک سائڈ پر تھے بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے میری درخواست ان کے آگے تھی، انہوں نے یہ سوال میرے سے کیا اس ایپلیکیشن میں جو لکھا ہے حقیقت میں مبنی ہے؟ میں نے کہا جی سر۔ تو کہنے لگے یہ کیس جو ہے یہ چونکہ اس میں زمین کا مسئلہ ہے آپ کا کیس سول عدالت میں چلے گا لیکن مارشل لا اس کی نگرانی کرے گا۔ لوگوں کو کہا کہ یہ لے جائیں اور وہاں کے ڈی آئی جی کمشنر کو فون کر دی کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے اور مجھے ان کا چلان چاہیے 5 مجرموں کا اور 31 اگست کو یہ کیس مجھے پیش کیا جائے۔ اچھا تو ہاں تو پھر بڑی انہوں نے مطلب اس کے اللہ انہیں جزا دے بڑی انہوں نے میری سپورٹ کی۔ میں فوراً پھر واپس آئے اور انہوں نے پھر اسی طرح کر کے ہدایات جاری کی اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ہدایت ادھر اسی وقت یعنی جو ٹائم ہوا تھا وہ بھی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم نوٹ کر لیں، آپ کے اگر والد صاحب یا کوئی ہوا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی بات ہو گئی ہے۔ اچھا تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ کیس جو ہے مجھے پیش کیا جائے۔ دوست نے سب کو ڈانٹ ڈوٹ دیا اور ان 5 مجرموں کا چلان کر کے رپورٹ پیش کر دی۔ یہ ایک واقعہ یہ ہوا۔ اس سے آگے میں آپ باتیں شروع کرنے والا ہوں۔ ایک بریک لے لیں ذرا۔ یہ جو آپ نے ابھی ویڈیو کلپ سنا ہے یہ ایک قادیانی صفدر علی جس کا نام ہے وہ اپنا ایک واقعہ بتا رہا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو کلپ اس کی وائس کوالٹی اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے سننے میں پوری طرح سے سمجھ نہ آتی ہو، تو اس کو میں پہلے بیان کر لوں کہ اس نے کیا کہا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔
یہ شخص کہتا کہ میں فوج میں تھا اور ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ اس کا جو چاچا ہے اور ایک اور اس کا رشتہ دار وہ جو ہے مرڈر ہو گیا اس کا. تو کہتا ہے وہ پھر میں نے فوج میں جو ہے ایک کرنل تھا, اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہیں میں رکا لکھ کے دے رہا ہوں, جنرل ضیاء کے پاس جاؤ اور وہ تمہارا جو اس کے قاتل ہیں ان کو گرفتار اور جو بھی پرابلم ہے وہ سولو کر دے گا. یعنی جنرل ضیاء الحق اس وقت پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں پھر چلا گیا, پہلے اپنے باپ سے بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم ٹرائی کر لو. تو جب وہاں میں گیا مجھے بڑا پروٹوکول دیا گیا, بڑی عزت دی گئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے سامنے مجھے پیش کیا گیا. تو اس نے اس نے جو ہے درخواست لکھی ہوئی تھی, جنرل ضیاء الحق نے بس یہی پوچھا کہ یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے اس میں درست صحیح لکھا ہے, سچ سچ. تو اس نے کہا ظاہر ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے فوری طور پر جو ہے اتھارٹیز کو کہا کہ اس کو فون شون کروا دیے, ڈی ایس پی وغیرہ, اور وہ سارے لوگ جو قاتل تھے وہ مرزائیوں کے ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور جو زمین تھی مرزائیوں کی وہ ان کو واپس لے. یعنی یہ مفہوم ہے اس کا یہ, اور اس میں یہ جنرل ضیاء الحق کو دعا بھی دے رہا ہے. اب یہ ایک ایسے آدمی کے لیے دعا دے رہا ہے جو قادیانی جماعت کہتی ہے کہ وہ ان کا دشمن تھا یہ وہ. تو باہر طور بات کیا ہے, بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بے شمار, کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور کی تاریخ جو ہے وہ بالکل چھپا دی گئی ہوئی ہے. اب کریت کے ڈھونڈنا نکالنا, اب یہ کبھی کوئی چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے تو میں ایز اٹ از جو سوشل میڈیا پہ لے آتا ہوں. تو اس میں بتانے والی بات یہ, کیونکہ آج کل بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی جی جنرل ضیاء الحق تو اتنا بڑا مجاہد اسلام تھا, اس کو جو کیا بولتے ہیں ملک دشمن اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس کو مرزائی کہہ رہے ہیں, عمران خان کو مرزائی کہہ رہے ہیں, اور بہت سارے مادر چودوں کو مرزائی کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ مطلب میں ہی لگا ہوا ہوں اس معاملے میں. تو یہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ او حرام زادو, براہ راست میرا نام لو کہ ایک شخص آغا وسیم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, اوکے, اور پھر میرے جو دعوے ہیں مولوی مل جائیں ایک جگہ پر, ان کے ساتھ لبرلز بھی مل جائیں, ان کے ساتھ ملحد بھی مل جائیں, ان کے ساتھ قادیانی بھی مل جائیں, سب کے ساتھ میری ایک بات کو یہ مادر چوت چیلنج نہیں کر سکتے, غلط ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. میں تو قادیانیوں کی چیزیں جو ہیں وہ قادیانیوں کے جس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے. اور پھر یہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ مولوی مادر چوت جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قادیانیوں کے ماخذ کو ماننا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ قادیانی پھنس گئے. انہوں نے کہا کہ جناب ہماری مولویوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی, ہر ایک کے ساتھ, لیکن یہ آغا وسیم آ کے ہماری چیزیں ہمارے سامنے کر رہے ہیں, ہم تو اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. لہٰذا انہوں نے یہ شارٹ کٹ یہ مارا مولوی مادر چودوں کو, انہوں نے پیسے ویسے دے دیے اور یہ کہا کہ یہ مشہور کر دو کہ ہم قادیانیوں کے ماخذ کو قبول نہیں کرتے, کیونکہ آغا وسیم جو ہے وہ قادیانیوں کے ماخذ سے ہی ان کی چیزیں سامنے لاتا ہے. یہی حال لبرلز وغیرہ کا ہے, ان بہنچود حرام زادے یہ ناجائز جو ہے بچے ماچود, کوئی کیا ہے مزمل ہے, کوئی اشتیاق ہے, کوئی فلانا, یہ ماچود سب کے سب حرام زادے, ایک بات کا میرا جواب نہیں دے سکتے, حرامی کتے. تو بہرحال یہ جو ہے اس لیے ضرورت بن جاتی ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. اور دیکھیے بارہا لوگ کہتے ہیں او بھائی تم کو میں نے آسان راستہ بتا دیا ہوا ہے, لاؤ اس مادر چود عمران خان کو,
निकालो उसको बाहर, बहनचोद दूसरी मर्ज़ई ने उसको अंदर डाल दिया हुआ है माँ चोद को, उसको सामने लेके आओ और उसको कहो, अगर कोई मुसलमान हो, अगर ये इस्लाम दोस्त हों, क्या नाम है, जनरल फलाने और मदर चौध, ये सारे 2 मिनट में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है बहन चौध वो। ओके, लेकिन ये नहीं, ये तरीका नहीं आजमाएंगे। लेके आओ माँ चौध को सामने, कहोगे बता मिर्जा गुलाम कादियानी को तू क्या कहता है, माँ चौध, दूध का दूध पानी का पानी अभी ये हो जाएगा। तुमने क्या, मुल्क इतने क्राइसिस में जा रहा है, कभी जंग का खतरा है, कभी बेरोजगारी है, कभी वो टेररिज्म हो रहा है, कभी वो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अनसर्टनिटी मुल्क में ज़्यादा, माचो तो तुमने उसको अंदर रखा हुआ है। पॉलिटिकल क्या कहते हैं, सियासी बहरान भी खाम खा में पैदा कर दिया हुआ है। उस माचोद को बाहर लेके आओ, उस दल्ले को टीवी के सामने बिठाओ, हरामजादे को, और मुझे लेके आओ, मैं इस माचोद से पूछूं, हाँ भाई दस तेरी भैन दा गश्ती दे पुत्रा, तू 25 करोड़ लोगों के सामने अपने आप मुसलमान कहना है। ओके, सबूत दे फिर मिर्जा गुलाम कादियानी को, तू बोल कि वो मादरचोद जो था वो जहन्नम का कुत्ता था, और तू उसको क्या, 2 मिनट में उसकी सारी चीज जो है ना गर्क हो जाएगी। ओके, लोगों को खुद उसके जो सपोर्टर हैं माचोद, उनको भी पता चल जाएगा कि ये गाडू तो मरज़ई है, और मरज़ई की हमायत करना जहन्नम में जाने वाली बात है। इसी तरह से ना सिर्फ वो, बल्कि ये नवाज शरीफ और इन सब माचोदों को लैन हाजिर करके, यानी इतना अच्छा अल्लाह ने कानून बना के रखा हुआ है कि किसी मरज़ई को जो है आप कैसे पकड़ना है। उसका सीधा सा तरीका ये है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बारे में वही बात करो जो आगा वसीम, मैं भी अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, यही शरीयत का कानून है। तो अभी जनरल ज़ियाउल हक के बारे में हर एक चीज़ वाज़े तौर पर देखिए, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रिगेडियर इजाज़ बोल रहा है कि हाँ मैं जनरल ज़ियाउल हक के साथ मरज़इयों की इबादत गाह में ईद की नमाज़ पढ़ने गया था। जनरल ज़ियाउल हक को तो ये कहते हैं कि मजहबी था, नमाज पढ़ता था, इस्लाम से बड़ी दिलचस्पी थी। हाँ, एक आदमी जो नमाजी ना भी हो, एक आदमी जो इतना इस्लाम के बारे में ना भी जानता हो, बस एक कमज़ोर सा मुसलमान हो, उसको जब ये कहोगे ना कि आओ भाई नमाज ईद पढ़नी है मरज़इयों की, क्या बोलते हैं, इबादत गाह में, वो कहो मैं गुनाहगार हूँ लेकिन गद्दार नहीं हूँ, मरज़ई की नमाज में जाके पढ़ूँ। तो यहाँ एक आदमी जिसको इस्लाम का मुजाहिद कहते हैं, ये गांडू किस्म का औरिया मकबूल जान ज़ाद हमद और ये हराम ज़ादे गश्ती के बच्चे, ये उसको क्या कहते हैं, ये इस्लाम का मुजाहिद है, इस्लाम का मुजाहिद है और नमाज पढ़ रहा है मरज़इयों की। यानी ये इतराफ़ मरज़ई का है, और बहुत बड़े और बड़ा, वो इतना क्लोज मरज़ई है, क्या बोलते हैं, वो कहता है कि जनरल ज़ियाउल हक ने अपने पहले बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखा था, इजाज़। तो वो बयान दे रहा है कि ये मेरे साथ मरज़इयों की इबादत गाह में नमाज पढ़ने गया था। फिर साकब ज़ीरवी खुद बयान कर रहा है, वो कह रहा है अल्लाह के फजल से अमलन, तो वो यानी ज़ियाउल हक के बारे में बात हो रही है इस क्लिप में, वो कह रहा है अल्लाह के फजल से वो आमदी थे ज़ियाउल हक के बारे में। ओके, तो बात क्या है, वो क्या बोलते हैं, जो एडवोकेट, क्या नाम है उसका, अब एडवोकेट अब मिर्ज़ा अब्दुल हक जो अमीर जमात सरगोदा है, वो कह रहा है कि जनरल ज़ियाउल हक मेरे बेटी की शादी पर आया, उनको तोहफे दिए, और उसका जो है, अब देखिए इस्लाम
इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि मरज़इयों के साथ आप जो है वो ऐसे उनके शादियों में जाएं, उनकी खुशी गमी में शामिल हों। हाँ, और ये जिसको ये कह रहे हैं कि जी वो जनरल ज़ियाउल हक जो है वो एंटी कादियानी था, लेकिन हकीकत क्या है कि वो कादियानियों के साथ इतने गहरे मरासम हैं कि वो उनकी फंक्शंस अटेंड करता है। ओके, ये उसको क्या नाम है, वो जेली जिसको नोबेल प्राइज़ दे के तो इन बहनचोदों ने सर पे उठाया हुआ है सबको, दुनिया को, कि जी उसको वो उस माचोद ने सामने कहा कि जनाब, सबके सामने कहा, सारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैठी हुई है, हाँ, तो जनरल ज़ियाउल हक ने उसके सामने सबके कहा कि ये 79 की बात है कि जनाब अली ये जो है ना पहला मुसलमान है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है। उस वक्त कोई मौलवी नहीं बोले आप पैंचोद कुत्ती का बच्चा मौलवी। तो इसलिए यही चीज़ें जो हैं। फिर देखिए उसकी माँ का नाम उम्मतुल बतूल है और ये नाम मरज़इयों का होता है। ओके, मैंने दर्जनों शवाहिद पेश किए हैं कि वो कादियानी था। माचोदो, कुछ शर्म करो, कादियानी को मुसलमान कह के तुम भी बहनचोदो कादियानी हो गए हो। लिबरल्स वगैरह को तो छोड़ दो, वो तो हैं ही माचोद कादियानियों की नुफ्ते की पैदावार, लेकिन ये जो खुद को इस्लामिस्ट कहते हैं ये माचोद हरामजादे मौलवी, जिन्होंने हज़ारों क्या बोलते हैं वो बनाई हुई हैं चंदा जमा करने के लिए ख़त्म नबूवत तंजीमें, इन्होंने माचोदों ने कभी ये काम नहीं किए हुए। ओके, और जब कोई बंदा कर रहा है ये काम तो यही सबसे पहले मेरी मुखालफत कर रहे हैं। मरज़ई तो पीछे हैं, ये आगे लगाया हुआ इन माचोद हरामजादे मौलवियों को मेरे खिलाफ। तो बाहर तौर ये चीज़ें जो हैं इतने फजूल किस्म की ये जो मतलब बातें करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जनाब अली चलो लाओ उसके मादर चौथ के बेटे को, उसकी औलाद को सामने लेके आओ, वो आके कहें कि ये जनरल ज़ियाउल हक जिसके बारे में आगा वसीम ने 1941 का जो अल-फज़ल है और जिसमें लिखा हुआ है कि ये ज़ियाउल हक जिसका नाम लिखा हुआ है कि उसने मिर्ज़ा महमूद की वहाँ बैत की थी दिसंबर के जो वहाँ जलसा कादियान होता था सालाना। ये जनरल ज़ियाउल हक का नाम है। इतना ही है, माचोद आके कहे कि नहीं मैं इस बंदे, ये कोई और है, ये मैं इस बंदे की मेरी माँ पर नहीं आया था। ओके, तो देखते हैं बाप बदलता है या मजहब बदलता है वो माचोद। तो बात क्या है, फिर उससे पूछो माचोदो तुम्हारे खानदान को तो सब मरज़ई कह रहा है कोई बंदा, चलो आओ सामने माचोद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को जो है वो तुम शरीयत के तौर पे उसका नाम लेके उसको जहन्नम का कुत्ता बोलो, उसको क्या नाम है ये जो कज़ाब बोलो और उसके फॉलोअर्स को जहन्नम का कुत्ता बोलो। माने तो तब ये माचोद अपनी अपनी थ्योरी लग गए हुए हैं। अल्लाह की बात को मानो, दल्लो हरामजादो कुत्ती के बच्चों मौलवियों। तो इसीलिए जो मैंने चीज़ें सामने रखी हुई हैं, बेशुमार रखी हुई हैं जनरल ज़िया के बारे में, यहाँ पर भी वाज़े तौर पर आपको वो मरज़ई कह रहा है कि जनरल ज़िया ने कैसे फेवर की हमारी। अब असल वाक़या क्या है वो बहनचोद इसने ये नहीं बताया। ये इसकी ये जिस ज़मीन के बारे में बात कर रहा है कि जिसके पीछे असल वाक़या ये है कि वहाँ कादियानियों ने अपनी मस्जिद या अपनी इबादतगाह बनाई हुई थी, वहाँ तबलीग का एक वो सिलसिला शुरू कर रखा हुआ था। वहाँ कुछ गैरतमंद मुसलमानों ने जाकर वहाँ इनसे वो ज़मीनें और वो जगह जो है वो छीन ली। इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी जो इबादतगाह थी उसको मस्मार करके उसकी जगह जो है एक छोटी सी मुसलमानों की मस्जिद बना दी थी।
वहाँ फिर कादियानियों ने हमला किया और इन कादियानियों के साथ पुलिस भी आई हुई थी। जब ये लड़ाई हुई है, इस लड़ाई के दौरान जो है 6 से 7 मुसलमानों को शहीद भी इन्होंने किया, और उसी में जो है जो मरज़ई इनके हाथ में आ गए तो वो मुसलमानों ने उनको मारा। ये तो जंग थी एक। असल बात क्या थी, और ये सारा उस ज़माने में ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेस वालों ने दबा दी, लेकिन फिर भी ये बाहर बात निकली थी कि मरज़इयों की और मुसलमानों की लड़ाई हुई है, और मरज़ई जो हैं वो अपनी इबादत गाह में, और ये जनरल ज़िया की पूरी नॉलेज में था। ओके, जनरल यानी पाकिस्तान की स्टेट की नॉलेज में था कि असल वाक़या क्या है। असल वाक़या ये है कि वहाँ पर ये मरज़इयों की जो है वो ज़मीन जो वो मुसलमानों ने छीना था। फिर इन्होंने ये 5 आदमियों का यहाँ बता रहा है, लेकिन इन्होंने कम से कम 2 दर्जन लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया था, और कई लोगों को इन्होंने डाकू समझ के और क्या बोलते हैं शरपसंद अनासर समझ के पुलिस के मुकाबले में भी मरवा दिया था जो इसमें शामिल थे, और कुछ लोग जो थे उनको लंबी लंबी जेलें कर दी गई थी। तो ये हालत है कि मैं सारे मरज़इयों की ज़ुबानी बता रहा, खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि जनरल ज़िया जो है वो कैसे हमारी फेवर किया करता था, और यहाँ माँ चौध हराम ज़ादे ये बदफेली करवाने वाले लिबरल मुजम्मल शाह और फलाना ये माँ चौध हराम ज़ादे हर जगह यही कहते हैं कि जनरल ज़िया जो है वो कादियानियों का शदीद मुखालिफ था। तो बात फिर वही है कि जब तक आप बात को समझेंगे नहीं, जब तक आप मसाइल को समझेंगे नहीं, लगे हुए हैं लो जी जनरल ज़िया, तो माचो दो हराम ज़ादो, जब एक तरीका, मेरी बात को छोड़ दो। ओके, लाओ इन सब माचोदों से पूछो कि तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को क्या समझते हो। इसीलिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये रूल ऑफ फेथ जो है वो लगा दिया था। ओके, क्योंकि ये बड़े मक्कार लोग हैं। ये क्या करते हैं, लोगों के सामने आके कलमा भी अदा करते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जी जनाब ये तो हम ख़त्म नबूवत के यकीन करते हैं, और इसी के ऊपर मौलवी जो है खुद फतवा देते हैं फलाना बंदा तो मुसलमान है, उसने कहा है कि मैं ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है चीज़ों को कैसे इन लोगों को समझाएं, कैसे चीज़ों को, जब आप मरज़ई को, यानी हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो मादरचोद, वो हरामज़ादे दायरा इस्लाम से खुद तो खारिज हो चुके हुए हैं, लेकिन पूरी एक मरज़ई को मुसलमान कहकर ओके दायरा इस्लाम से तो वो खारिज हो चुके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यंगस्टर जो हैं वो उनको भी वरगला कर और गलत इन्फॉर्मेशन दे के गुमराह कर रहे हैं। और जब वो गलत इन्फॉर्मेशन, यानी जब एक नौजवान कट्टर कादियानी को इस्लाम का मुजाहिद समझ के जो है वो अपनी नशो नुमा करेगा, तो आप मुझे बताएं कि वो क्या इस्लाम की खिदमत कर सकेगा। यहाँ ये मुजरम है, ये मादरचोद हरामज़ादे कुत्ती के बच्चे मौलवी, इन सबको सख्त सजाएं देनी चाहिए कि देखो पक्के मरज़ई हरामज़ादे इकबाल के बारे में इन्होंने उसको नबी, दिली तौर पे तो नबी कहते होंगे लेकिन पब्लिकली अभी नहीं कह रहे, ओके, लेकिन उसको एक कट्टर मुसलमान साबित कर रहे हैं। साबित तो नहीं कर सकते, यानी कह रहे हैं। तो इस तरीके से इतनी गुमराही पैदा हो चुकी हुई है, और यही वजह है हमारे तमाम मसाइल की, हमारे तमाम मुश्किलात की, कि कौम को मुकम्मल तौर पे जो है वो उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। ये मौलवी हैं जो ये मादरचोद कादियानी, असल में बहुत सारे मौलवी, मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ, बहुत सारे मौलवी असलन हैं कादियानी, लेकिन कोई बरेलवी की शक्ल में आया हुआ है, कोई देवबंदी की शक्ल में आया हुआ है, कोई वहाबी की, कोई शिया की, और आके जनाब ये इस्लाम का
मेयार ये बना लेना चाहिए मुसलमानों को कि कोई मौलवी जब वो ख़त्म नबूवत और बात करे उसको रुको तेरी पैंदा, पहले ये बताओ कि गुलाम मिर्ज़ा को तुम क्या समझते हो, पब्लिकली यहाँ अनाउंस करो, ओके। और फिर बंद कर दो कि वो मादरचोद टॉयलेट में मर गया था, वो हमें पता है। इसके ऊपर क्या कहते हो कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट के टोटल कंट्रोल है वो मरज़इयों का है। इस पर क्या कहते हो कि मुल्क में, हमारे मुल्क में जो है रूल ऑफ फेथ को दोबारा नाफिज किया जाए। ये क्यों नहीं डिमांड करते कि पाकिस्तान में जो 1973 का आइन है उसमें जो क्या बोलते हैं हल्फ वफादारी का जो मतन है वो क्यों नहीं बहाल करवाते, जो जिसमें हर किस्म की नबूवत का रद्द है, हर किस्म की, ओके, ज़िल्ली और बरूदी, जिस नुक्ते के ऊपर हमारा तजाद है मरज़इयों के साथ। ये क्यों नहीं आकर कहते कि जनाब आली आप पाकिस्तान के अंदर मीनार बनाए शोहदा का, ओके, माचोदो वो मरज़ई जो मर गए हैं, जो कोई नज़ले ज़ुकाम से मर गया मरज़ई, उसको बहनचोदों ने निशाने अदर दे दिया झूठ की बुनियाद के ऊपर, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के लिए अपने सीनों पे गोलियां खाई हैं। माचोद मौलवी हो तुम, उनके नाम पे पैसे तो बना रहे हो लेकिन उनके यादगार क्यों नहीं बना रहे, हरामी कुत्तों, दल्लो। तो यहाँ तक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने से ताल्लुक़ रखना चाहिए लोगों को, लेकिन क्या किया जाए, कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। इतनी डीट हो गई हुई है कौम। और देखो ये कितने मादरचोद हैं ये गांडू लोग, पाकिस्तान की कौम का हाल देखो, नारे लगा रहे हैं इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान हमारा शेर है, इमरान खान आशिक रसूल है, इमरान खान ये है, इमरान खान वो है। और हरामजादों, कुत्ती के बच्चों, ये सुन ये जान कि कोई आगा वसीम ने इसको 8-10 साल से मरज़ई कहा हुआ और ये चीज़ें दी हुई हैं कि उसके मरज़ई होने पे। और गुश्ती के पुत्रों, तुम तो एक फ़ानी इंसान के लिए, एक क्या फासद व फाजर इंसान के लिए, एक कादियानी के लिए मादरचोदो तुम दायमी जहन्नम की आग बनने के लिए तैयार हो चुके हुए हो। यही हाल दूसरे लीडर्स का भी है, यही आज वही जो भैंचोद मरज़इयों को हीरो बना रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ समझने से ताल्लुक़। ये मौलवी जो हैं जब तक इस मुल्क के अंदर, देखिए जी इस मुल्क के जो भी है हालात वो यही हैं कि जब तक इस मुल्क में से कादियानी रूल को ख़त्म नहीं होता ये दहशतगर्दी भी रहेगी। यहाँ पर जनाब आली आपको गुनागू मसाइल से भी, गुर्बत, हर किस्म की, यही है इसका हल है। एक जो आगा वसीम कह रहा है उसके ऊपर आप आएँ, मरज़ई हटाओ तहरीक के बुनियादी मकासद को अपना नज़रिया बनाएं और फिर लोगों के अंदर एक नई तहरीक पैदा करें। इलेक्शन कादियानियों के अंडर कंट्रोल होते हैं पाकिस्तान में, हर 20,000 और भी इलेक्शन हो जाएंगे, निज़ाम नहीं बदलेगा, क्योंकि ये वो निज़ाम है इलेक्शन का और सो कॉल्ड जमहूरियत का जो कि पाकिस्तान में मरज़ई हाकमियत को की बुनियाद बना रहा है। तो लोग अगर इसके ऊपर राज़ी हैं तो राज़ी रहें, फिर चीखे ना मारें, महंगाई के ऊपर ना करें और मेयार ज़िंदगी जो कम से कम तर होता जा रहा है, दहशतगर्दी, ये वो सारे मसाइल, फिर इसके ऊपर खुश हों, लुटियाँ डालें। तो बहरहाल जी ये मैंने फिर ये एक पैगाम है इसके ऊपर जनरल ज़ियाउल हक के, ये आप सारा सुन लें कि ये क्या कह रहे हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के कादियानी नवाज होने का, कादियानी को फेवर करने का मैं नहीं कह रहा, खुद मरज़ई कह रहे हैं। और पैंचोदो ये तो चीज़ को समझ जाओ, या तो ना कि मैंने अपनी तरह से कोई बातें की हों। वो मरज़इयों के साथ नमाज़ें पढ़ता है, ये मरज़ई कह रहे हैं।
अमलन तो ज़ियाउल हक कादियानी था, ये मरज़ई खुद कह रहा है। वो क्या बोलते हैं, मिर्ज़ा अब्दुल हक जो जनरल ज़ियाउल हक की माँ का लवर बॉय था, ओके, वो खुद कह रहा है कि जनरल ज़ियाउल हक की माँ बूढ़ी भी हो गई थी लेकिन मेरे लिए मेरा पूछा करती थी कि वो कैसा है। तो जाहिर है लाविन शिमला रेड हैंड पकड़े गए थे ना ये, ओके, रेड हैंड पकड़ा गया था। फिर इसने अपनी किताब, अपनी क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा कि मेरे सामने शिमला में एक औरत थी जो मुझे दावत गुनाह देती थी लेकिन मैंने इनकार किया। हालांकि ये कौन थी, ये जनरल ज़ियाउल हक की माँ थी। और इसकी बुनियाद के ऊपर जनरल ज़ियाउल हक का वालिद जो एक वक्त में लाहौरी जमात का फॉलोवर बन गया था, जब लाहौरी क्योंकि उसका जो मिर्ज़ा अब्दुल हक का बड़ा भाई जो था ना, मिर्ज़ा अब्दुल रहमान, वो जनरल ज़ियाउल हक के वालिद का ख़ास दोस्त था। वो मरज़ई था और जब 1914 में स्प्लिट हुई है तो वो लाहौरी जमात में चला गया। और क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और वो भी फिर ज़ियाउल हक का वालिद भी ये लाहौरी जमात में चला गया। जब उसने ये देखा कि लाविन शिमला हो रहा है, रेड हैंड पकड़े गए, तो फिर वो नाराज़ हो गया उसके साथ। किसके साथ? उसके फैमिली के साथ। तो फिर उसने इनसे दोस्ती ख़त्म कर दी। तो वो फिर जनाब मिर्ज़ा महमूद के पास जाके सारे ख़ानदान की उसने बायत की वहाँ। ये असल चक्कर है। ज़ियाउल हक का जो दादा था वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का क्या बोलते हैं, ये तो सहाबी कहते हैं लेकिन बहरहाल वो उसका मुरीद बना था 1 मई 1889 को। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आप लोगों के सामने हैं। इमेजिन करें कि शरीयत क्या कहती है कि तुम किसी मरज़ई को या जिसके ऊपर मरज़ई होने का इल्ज़ाम हो और वो माचोद खामोश बैठा हो, ओके, बताओ शरीयत का क्या हुक्म है? दसो पैन चौद मौलवियों, कुत्ती दे पुत्रो, हरामियों, मरज़इयां दी। अब मैं क्या कहूँ, बहुत बेहिस है। मौलवियों का बायकॉट जब तक नहीं होगा तब तक ये मरज़ई हटाओ तहरीक जो है ना, ये मौलवी ही इसके ख़िलाफ़ हैं। कादियानी तो कुछ नहीं मेरा कर सकते, मौलवियों ने को पीछे लगा दिया मेरे इन बहन चौदों ने। तो कोई बात नहीं, मैं तो इन सब को जो है ज़लील और रुसवा इंशाल्लाह करता रहूँगा। दिया कि मैं नहीं छापूंगा, सुप्रीम प्रेस ब्रांच को भी भेज दी उसकी नकल। तो मीम शीन और मैं जाके DPR को मिले तो उसने कहा साहब आप दरख्वास्त दे दें तो फिर मैं भिजवा दूंगा। और वो तो ये बाहर कहने लगे कि इसकी नीयत ख़राब है, मैं पर्चा छापूंगा जो हो सो हो। दलेरी थी। हाँ, तो वो साहब पर्चा छपता रहा, डिक्लेरेशन की मंजूरी नहीं हुई थी। ये एक बड़ी बात थी। जी हाँ, बिल्कुल। फिर उन्होंने ताल्लुक पैदा, हालांकि ये जनरल सियाह और वो दो इनके देहात में 1.5 मील का फासला है जलंधर में। फिर ये अराई थे, जी जी, उनको उन्होंने शूरा का मेंबर भी बनाया। लेकिन ये कि कलमा हक कह देते थे अहमदियों के हक में, यहाँ से बिगाड़ शुरू हुआ। जी जी। फिर उन्होंने हमारे मुकदमात में, सच्ची बात है, हर जगह गए और बीमार भी होते तो हमीद असलम साहब कार पे ले आते थे और ये बेचारा अदालत में हाजिर होता था। लेकिन अजीब बात ये हुई कि जनरल ज़िया से जब वो बदगुमान हुए, ये पिछले इलेक्शन में खड़े हो गए रनाला खुर्द से। तो मेरे पास आए, 2 आदमी इनके साथ और थे, मुझे कहने लगे भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ, और मैंने वो कागजात नाम दाखिल कर दिए। मैंने कहा तुम क्यों खड़े हो गए हो, तुमने होना तो है नहीं, फ़ायदा क्या हो? मैंने कहा तुम इसलिए खड़े हो रहे हो कि वहाँ अराइयों के वोट ज़्यादा हैं। चारों जो खड़े हो रहे हैं चारों अराई हैं और करोड़पति हैं वो दो, एक मिचल वाला है, एक वो हजरत पर कर्मा वाला का लड़का है, तुम्हें कौन पूछेगा? तो ये उठ के उसने कहा अच्छा मेरी बात सुनो। बाहर जाकर कहने लगा कि मुझे जनरल साहब ने पैगाम भेजा है कि तुम्हें ज़रूर होना चाहिए और मैं तुम्हें कराऊंगा। मैंने कहा खुदा के लिए ना खड़े होना,
وہ صرف جھوٹ بولتا ہے شخص. تو یہ تو خیر اس بات کو انہوں نے تسلیم نہ کیا. میں نے کہا باقی رہا یہی کہ ہمارے نہ تو ووٹ ہیں، پھر جماعتی طور پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی پارٹی کی مدد نہیں کریں گے. میری ذاتی تمہارا تعلق ہے، تم جو کہو گے میں کروں گا. ٹھیک، میں اس کی خود ایکسپلینیشن دے لوں گا. تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی 24 گھنٹے پہلے بتا دیا کرنا، جہاں سے میں لاہور کے لیے لیتا ہوں تمہارے لیے بھی لے دیا کروں. تو یہ خیر الیکشن میں لڑا اور یہ ہار گئے. جب ہار گئے تو ایک دن گھر آئے تو مجھے کہنے لگے مجھے ہار جانے کا صدمہ نہیں ہے، سب سے بڑا صدمہ اس بات کا ہے کہ جنرل نے ایک بریگیڈیئر بھیجا ہوا تھا جو میرے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا. آخر میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا. دیکھو بھائی ہمارے ساتھ کیا دشمنی تھی، یعنی یہ اس نے ہماری دشمنی میں خدا تعالیٰ دشمنی لی کہ اللہ اکبر بھی نہ کہو، اشہد ان لا الہ الا یہ بھی نہیں، تو تمہارے ساتھ کیسے وفا کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ عملاً تو احمدی تھے، یعنی یہ اس نے ہماری دشمنی میں خدا تعالیٰ دشمنی لی کہ اللہ اکبر بھی نہ کہو، اشہد ان لا الہ الا یہ بھی نہیں، تو تمہارے ساتھ کیسے وفا کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ عملاً تو احمدی تھے اس وقت. یا آپ نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ جنرل ضیاء الحق واز یور کلاس فیلو. ضیاء الحق کی بات بھی بتا دیتا ہوں. آئی وینٹ ٹو انگلینڈ آن اے کورس ان 1950. اچھا. 51 میں آئی واز ان انگلینڈ. مجھے یاد ہے کہ جب آئی لینڈڈ ان لنڈن پہلی دفعہ ینگ مین، تو ایک دو دن کے بعد عید تھی، تو عید پڑھنے کے لیے ہم چلے گئے مشن ہاؤس میں. اب مشن ہاؤس میں وہ باجوہ صاحب، مشتاق باجوہ صاحب ہوتے تھے، وہ امام تھے. جی. وہ ایک تو لمبے والے تھے نا، ایک دوسرے چھوٹے والے مشتاق باجوہ بہت ہوئے جو مجھے علم نہیں ہے. جی اچھا. یعنی یہاں 2-3 سال ہوئے فوت. وہ ہوتا رہا. 1955 میں آئی وینٹ ٹو اسٹاف کالج کوئٹہ، کمان اسٹاف کالج کوئٹہ. تو 1955 میں ہی کمان اسٹاف کالج کوئٹہ میں ضیاء الحق تھے. وی ور کورس میٹ. جنرل سوار خان بھی تھے اور بھی تھے. تو جنرل ضیاء الحق صاحب شکر میجر تھے، میں بھی میجر تھا. تو ہم لوگ ایسے جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے، 1 سال کے قریب پورا کورس تھا. ہی واز ویری فانڈ آف می. اچھا. اور بڑی دوستی تھی. دوستی تھے. اور میں بعض لوگوں کا کہنا ہے اس زمانے میں کہ اعجاز الحق کے گھر ایک جو لڑکا پیدا ہوا تھا اس کا نام اعجاز، اس نے میرے نام پہ رکھا تھا. اچھا. اعجاز الحق. ہی از اے سن. اعجاز الحق منسٹر ہے ابھی. لیکن آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار از. مطلب ہی واز سو یور بوزم فرینڈ، ویری سو فرینڈلی. تو اس کے بعد دوستی قائم رہی، ملاقات رہی خوب.